Dear student, let us study rules for spin-spin splitting of proton signal. In previous video, we discussed the cause of spin-spin splitting of proton signal. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्रोटॉन का सिग्नल है that is splitted by the spin combinations of the adjacent proton. If we have two set of non-equivalent proton on adjacent coordinates, then they cause splitting of each other. Equivalent proton don't cause. जैसे अगर हम बात करें बच्चे इथेन वाली की, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें all the 6 protons are equivalent. So they give single peak, the PMR spectrum, and there is no split. Whereas if we talk of this molecule, हमने डिस्कस किया था, मैं इसी की बात कर रहा हूँ. But this molecule 1,1 dibromo 1,1 dibromo. इस मॉलिक्यूल में क्या है बच्चे, वी हैव टू सेट ऑफ नॉन इक्वल. दिस सेट, ये सेट पहले इसको आप splitting of A type of proton is caused by the B and B is caused by A. ठीक है बच्चे, तो ये जो स्प्लिटिंग है इसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल. उन रूल्स को हम आज स्टडी करेंगे. पहला रूल क्या है, splitting of proton signal is only caused by non-equivalent neighboring or vicinal proton. मैंने बता भी दिया पहला रूल. Splitting of proton signal is only caused by non-equivalent neighboring or vicinal proton. मतलब proton on adjacent carbon. Non-equivalent proton ही क्या करते हैं बच्चे, split. Equivalent proton splitting नहीं करते. जैसे मैंने कहा कि this ethane molecule has 6 equivalent protons, 3 on 1, 3 on 9, vicinal coordinate. So their signal appear as single peak without splitting. All the 6 protons give single peak in PMR. Whereas another molecule मैंने बताया 1,1 dibromoethane has 2 type of non-equivalent proton, 2 set of non-equivalent proton, and the signal of each set of proton further split. इस केस में फर्दर क्या होगा, स्प्लिट होगा. एक और मॉलिक्यूल बच्चे या उसने ये मॉलिक्यूल, अगर आप इसको गौर से here the two set of protons on vicinal cognatum are equivalent. Their chemical environment is equivalent. Hence, they don't show split. इनके केस में all the proton will give single without splitting. Second point, splitting of signal of one proton by another proton on same carbon, जिसको हम कहते हैं जेमिनल प्रोटॉन, जेमिनल कपलिंग, जेमिनल प्रोटॉन. विसिनल एडजेसेंट वाले को बोलते हैं विसिनल और इसको बोलते हैं जेमिनल, जेम प्रोटॉन, जेमिनल प्रोटॉन. तो इसमें क्या रूल है बच्चे, जेमिनल कपलिंग इज सीन ओनली व्हेन द टू जेमिनल प्रोटॉन्स आर नॉन इक्विवेलेंट. तो जेमिनल कपलिंग भी आपको मिलेगी, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल यहाँ भी आपको मिलेगा, लेकिन कब, when the two geminal protons are non-equivalent. To illustrate the concept, let us discuss these two molecules, isobutylene and 2-bromopropene. If you look at the first molecule, isobutylene, both the geminal protons, these are geminal protons, they are in the same environment. How?
बिकॉज अब देखें इसके सामने भी यहाँ पे मिथाइल है, इसके सामने भी they are the same chemical environment. Hence, they are equivalent protons. These two protons are equivalent proton, and hence don't cause splitting नहीं करेंगे बच्चे, याद रखें। इसमें आपसे कोई पूछ ही ले एग्जाम में कि इसमें कितने सिग्नल आपको मिलेंगे, how many signals you will get? You will get with it 2 signals. These 6 protons will give 1 signal. They are equivalent proton. अब देखें इनका एनवायरनमेंट भी सेम है, केमिकल CH3 के सामने H है, CH3 के सामने H है, so their chemical environment is same. So these 6 protons will give 1 signal. These 2 protons will give 1 signal. We get 2 signals. Further, there is no नहीं होगा। एक और चीज याद रखना बच्चे, ये हम नेक्स्ट रूल में खैर पढ़ेंगे। अगर बिटवीन द 2 प्रोटॉन मोर देन 2 कार्बन एटम आ जाए, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये CH3 के प्रोटॉन इस H की स्प्लिटिंग करेंगे सिग्नल की? यहाँ तो खैर हम जेमिनल की बात कर रहे थे, ये इसकी स्प्लिटिंग नहीं करेगा। क्यों? बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स वी हैव 3 कार्बन। स्प्लिटिंग तभी होती है जब 2 कार्बन मोर देन 2 हो जाए, स्प्लिटिंग इन जनरल नहीं होती। इसमें क्या है? These 2 germinal protons have different chemical environment. They have different chemical environment. And hence these 2 protons are non-equivalent. Therefore, they will cause splitting of signal of each other. ये splitting of signal करेंगे। ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझा रहा था कि अगर ये मैं पहले मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि इस मॉलिक्यूल को डिस्कस करें। यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन करे क्या ये मिथाइल के प्रोटॉन इस मिथाइल के प्रोटॉन के सिग्नल की स्प्लिटिंग करेंगे? क्या मिथाइल के प्रोटॉन CH2 के प्रोटॉन के सिग्नल की स्प्लिटिंग करेंगे? मोर देन 2 प्रोटॉन, जैसे ये देखो ये प्रोटॉन है, विसिनल प्रोटॉन होंगे तो बच्चे स्प्लिटिंग होगा। जैसे इस पे सपोज करें कोई प्रोटॉन नहीं, ये मॉलिक्यूल, ये सिचुएशन है, सिचुएशन इस मॉलिक्यूल में ये सिचुएशन है। दिस इज सपोज कार्बन 1 2 3 1 2 3। तो बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स, these 2 protons we have how many? 3 carbon atoms। मतलब 2 से ज्यादा कार्बन एटम आ गए between 2 protons, and hence they cannot cause splitting। तो फर्दर द म्यूचुअल स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन, और अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि स्प्लिटिंग म्यूचुअल होती है। विसिनल प्रोटॉन CH का प्रोटॉन, यहाँ पे देखें CH का प्रोटॉन CH3 वाले प्रोटॉन की स्प्लिटिंग करेगा और CH3 वाला CH। ये वर्ड म्यूचुअल स्प्लिटिंग यूज होता है। म्यूचुअल स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय मोर देन 2 एटम्स इज नॉर्मली नॉट ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल डिस्कस किया है, इसमें स्प्लिटिंग नहीं होता। तो जो ये मिथाइल प्रोटॉन है, कितने हैं बच्चे? 6 मिथाइल प्रोटॉन्स CH3 CH3, देयर signal appear as single P, no splitting. Similarly, methylene proton signal appear as single P. Very important, no splitting. Next important point which discuss करते हैं। Next important point let us discuss। नंबर ऑफ सिग्नल के लिए उसने एक फार्मूला दे दिया हमें, N+1 रूल। मतलब जो गिवन प्रोटॉन है उसका सिग्नल एडजेसेंट प्रोटॉन कितने में स्प्लिट करेगा? वी हैव N+1 रूल। व्हाट इज N+1 रूल? N is the number of protons on adjacent carbon atom. N is the number of protons on adjacent carbon atom. मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ये देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो CH वाला प्रोटॉन है, ये इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा? इसका सिग्नल स्प्लिट किसने करना? इसने। इसकी स्पिन कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी स्पिन कॉम्बिनेशंस these methyl protons can take।
जितने ये स्पिन कॉम्बिनेशन लेंगे उतने में सिग्नल स्प्लिट होगा। वो आपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। स्पिन कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्पिन कॉम्बिनेशन ये देखिए, हाउ मेनी स्पिन कॉम्बिनेशंस दिस मिथाइल प्रोटॉन। मिथाइल प्रोटॉन है, मिथाइल प्रोटॉन कितने प्रोटॉन है बच्चे? तीन प्रोटॉन, ये देखिए 3 प्रोटॉन, 1 2 3। मिथाइल प्रोटॉन कैन टेक दीज स्पिन कॉम्बिनेशन। एक स्पिन कॉम्बिनेशन क्या है? इसमें ऑल द 3 प्रोटॉन्स आर इन अलाइनमेंट विद द अप्लाइड फील्ड। एक कौन सा है बच्चे? जिसमें ऑल द 3 प्रोटॉन्स, ये वाला, आर अपोजिंग द अप्लाइड फील्ड। और ये दो स्पिन कॉम्बिनेशन जिसमें प्रोबेबिलिटी 3 टाइम है, 3 टाइम प्रोबेबिलिटी है इसमें बच्चे। 3 बार क्यों लिखा है आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसमें देखिए 2 प्रोटॉन्स और इन अलाइनमेंट विद द अप्लाइड फील्ड एंड 1 अपोजिंग। अब प्रोटॉन 3 है हमारे, वी हैव 3 प्रोटॉन्स। हम इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं जैसे एच, यानी एच एच एंड एच, दीज आर 3 प्रोटॉन्स। इसको हम अगर 1 बोले, इसको 2, इसको 3 कर दें बच्चे। अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3, ठीक है बच्चे। ये हो गया पहला प्रोटॉन, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें पहला क्लॉकवाइज, दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा क्लॉकवाइज। इसमें फर्स्ट एंटी एंड 2 आर क्लॉकवाइज। लेकिन इनमें सब में आप देखिए सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी क्या मतलब आइडेंटिकल क्या है? ऑल द 3 हैव 2 प्रोटॉन्स इन क्लॉकवाइज एंड 1 इन एंटी। नेट इफेक्ट कितने का होगा? 1 का। इसका नेट इफेक्ट कितने का होगा बच्चे? 1 का। मतलब 1 प्रोटॉन नेट इफेक्ट इज इन अलाइनमेंट विद द अप्लाइड। लेकिन प्रोबेबिलिटी इनकी 3 टाइम है। इस वाले कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम है बच्चे? 3 टाइम। और इस वाले की कितनी है बच्चे? 3 टाइम। इसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा होगा? जैसे इसमें 2 क्लॉकवाइज है, इसमें 2 एंटी। इससे ज्यादा स्पिन कॉम्बिनेशन आप बनाने की कोशिश करें बच्चे, नहीं बनते। So 4 type of spin combinations are possible in case of methyl proton, and hence it can affect the applied field in 4 ways. Therefore, signal of the adjacent proton split into 4 p's. Adjacent proton का ये वाले प्रोटॉन मिथाइल प्रोटॉन सिग्नल कितने में स्प्लिट करेंगे? 4 में। प्रोटॉन कितने थे? 3। सिग्नल कितने में स्प्लिट हुआ? 4 में। तो आपको फार्मूला दिख रहा है n+1। n इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर कॉजिंग द स्प्लिट। कितने हैं? 3। n+1, 3 + 1 दैट इज 4। तो दिस इज द फार्मूला। ये उन्होंने रूल दे दिया, ये हम स्टडी कर रहे थे यहाँ पे। n+1 रूल, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, यहां से मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि आपसे कोई कहे कि जो CH प्रोटॉन है इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा? आपने देखा एडजेसेंट कॉर्ब पे कितने प्रोटॉन है? 3। 3 + 1 दैट इज 4। इट्स पीक विल स्प्लिट इनटू 4। इसका पीक 4 में स्प्लिट हो जाएगा, सिग्नल 4 में। ठीक है। इसी तरह मिथाइल के प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा आपसे कोई पूछ ले? इट्स सिग्नल विल स्प्लिट इनटू 2। 2 कैसे? एडजेसेंट कार्बन पे एक प्रोटॉन है, n+1 दैट इज 1 + 1। इट्स सिग्नल विल स्प्लिट इनटू 2। इसका सिग्नल जो है बच्चे, इसका सिग्नल जो है आपका वो स्प्लिट हो जाएगा कितने में? 4 में। कितने में स्प्लिट हो जाएगा बच्चे? 4 में। ठीक है ना। इसका सिग्नल आपका स्प्लिट हो जाएगा 4 में, और उसका कितने में? 2। इट्स सिग्नल विल स्प्लिट इनटू 2। So this is very important. Number of signals, number of peaks into which signal split, उसको कैलकुलेट करना सिंपल है, n+1 रूल लगाना। और ये इसने बच्चे दिया भी है। ठीक है। अगर स्पिन कॉम्बिनेशंस, दीज रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ कंपोनेंट, ये रिलेटिव इंटेंसिटी दी हुई है बच्चे। अगर आपका सिग्नल सिंगल में स्प्लिट होता है, अगर आपका स्प्लिट होता ही नहीं, मतलब सिंगलेट है, तो उसमें तो इंटेंसिटी का मतलब नहीं।
अगर आपका सिग्नल 2 में स्प्लिट होता है, उसको डबलेट कहते हैं, तो इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:1। अगर 3 में स्प्लिट होता है, इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि जो सेंटर वाला पीक है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। 1:1 1331 मतलब क्वार्टेट, मतलब सेंटर वाले पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी रेशियो ऐसे आएगा। ये है इसका मतलब। क्विंटेंट हो गया जो सिग्नल कितने में स्प्लिट हो बच्चे, 5 में, और इंटेंसिटी रेशियो बताया है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बताया गया है कि जो सिग्नल हमारे अपीयर होते हैं, जो इंटेंसिटी रेशियो अभी हमने बताई आपको, इंटेंसिटी रेशियो डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, ये इंटेंसिटी रेशियो हमने बताई, लेकिन जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आनी चाहिए इंटेंसिटी की, कहता वो नहीं आती। जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम बोल रहे 1331 एग्जैक्टली उसके हिसाब से नहीं आती। ऑल द पीक्स ऑफ ए गिवन मल्टीप्लेट, doublet, triplet, quartet don't have exactly the same intensities as predicted above. In general, it has been found that inner peaks, that is peaks near to the other coupled multiplets, are larger than the outer peaks. ये देखा गया बच्चे कि जो इनर पीक्स होते हैं वो लार्जर होते हैं किससे, आउटर से। इधर देखो बच्चे, आपका जैसे ये जो है, ये वाला, ये एग्जांपल उसने दिया है किसी मॉलिक्यूल का, जिसमें आप सपोज करें ये प्रोटॉन एक्स रख रहे हैं, एक्स प्रोटॉन, ये बाई प्रोटॉन, एग्जांपल के लिए इसमें जो एक्स प्रोटॉन है उसका सिग्नल ट्रिपलेट में आया है, और बाई प्रोटॉन का सिग्नल किस में आया बच्चे, डबलेट में। एक्स का आया ट्रिपलेट में, बाई का किस में आया है, डबलेट में। ठीक है, इसमें जो ट्रिपलेट है उसकी रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो क्या आनी चाहिए ट्रिपलेट की, जैसे उसने बताया हमें 1:1। ये देखें बच्चे, इंटेंसिटी रेशियो 1:1, और जो डबलेट आया उसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या आनी चाहिए, 1:1। मतलब दोनों पीक की हाइट सेम होनी चाहिए, 1 ऐसे आना चाहिए। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आना चाहिए एक्स। ये हो गया 1:1। 1:1 का मतलब 1 और 1 की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, 2 वाले की ज्यादा, डबल इंटेंसिटी। और जो 1:1 दोनों पीक्स की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन ये हो गया थ्योरेटिकल, एक्चुअल में ये आया एक्सपेरिमेंटल। ये दिस इज एक्सपेरिमेंट, इसको देखें आप, ये एक्सपेरिमेंट। इसमें आप क्या देखते हैं बच्चे, जो इनर पीक्स हैं ये which are lying close to the other, which is lying close to the other peak, which is like close to the peak of the other proton, inner peaks. These peaks have generally higher intensity than the outer peaks. जैसे इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, 1:1 है ना इनका इंटेंसिटी रेशियो, लेकिन देखिए इनर पीक, दैट इज द पीक विच इज लाइंग क्लोज टू द पीक्स ऑफ द अदर एडजेसेंट प्रोटॉन दैट हैज हायर इंटेंसिटी। इसी तरह से इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए थी, पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू द अदर। ये कोई और मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इसमें क्या है, जो एक्स प्रोटॉन है ना, इसका सिग्नल 4 में स्प्लिट हुआ है, और जो बाई प्रोटॉन है इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट हुआ है बच्चे, 2 में। ये हमारा यही मॉलिक्यूल है, ये CH प्रोटॉन सिग्नल स्प्लिट इनटू 4, तो ये CH वाला प्रोटॉन है, CH प्रोटॉन है। ये मॉलिक्यूल साइड में जो डिस्कस किया हमने, ये मिथाइल प्रोटॉन है। मिथाइल प्रोटॉन सिग्नल स्प्लिट इनटू हाउ मेनी, 2। किसने स्प्लिट किया, एडजेसेंट प्रोटॉन CH ने, इस स्प्लिट इनटू डबलेट। तो एज पर आवर डिस्कशन अब सिग्नल ऐसे आने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा ऐसे आए। तो इस चीज को याद रखें कि जो इंटेंसिटी आनी चाहिए वो एग्जैक्टली वैसे नहीं आती। ऑल द पीक्स ऑफ ए गिवन मल्टीप्लेट don't have exactly the same intensity as predicted. In general, it has been found that the inner peaks, that is peaks nearer the other coupled multiplets, are larger than the outer peaks. Inner peaks की बच्चे इंटेंसिटी ज्यादा होती है as compared to the outer। आपने देखा इसमें, है ना, आपने देखा भी इसमें, ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है बच्चे, आपने देखा इसमें इनर पीक, इन दोनों को देखें 1, इसमें रेशियो इंटेंसिटी रेशियो क्या है, 1:331,
जो इंटेंसिटी रेशियो है इस वाले में क्या है बच्चे 1 3 3 1, लेकिन देखें 1 1 इनर पीक की इंटेंसिटी हाई है, 3 3 इनर पीक की इंटेंसिटी एज कंपेयर टू द आउटर पीक क्या है बच्चे हाई है। सेम मिथाइल प्रोटॉन अपीयर एज डबलेट एंड द इंटेंसिटी रेशियो शुड बी 1 1, और यहाँ पे देखिए जो इनर पीक है उसका इंटेंसिटी आउटर पीक से है, इनर टू दिस जो इस साइड लाइट कर रहा है, अदर मल्टीप्लेट ये जो क्लोज है, अदर मल्टीप्लेट के जो ऑफ द सेम वन। इसी तरह से एक और बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ठीक है, इसको आप खुद भी देखिए। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं अदरवाइज ये साथ उसके बाद है सम एग्जांपल्स, ये आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे इस मॉलिक्यूल में वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमने बताना कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे, पहला पॉइंट, फिर उनकी स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी। CH3 प्रोटॉन, CH2 प्रोटॉन, CH3, all the 3 type of protons are non-equivalent। ये CH3 प्रोटॉन इस CH3 प्रोटॉन से क्या डिफरेंट एनवायरनमेंट में, कैसे आपने देखा ना एडजेसेंट कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन पे CH2 है, तो देयर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। CH2 प्रोटॉन और CH3 का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो इतना तो पता चल गया हम, ये वी विल हैव 3 पीक्स। अब देखना स्प्लिटिंग, इस CH3 प्रोटॉन की कोई स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बताया है कि एडजेसेंट कार्बन पे क्या होने चाहिए प्रोटॉन, वो तो है नहीं, इट्स सिग्नल भी अपीयर है सिंगल, इसका सिग्नल अपीयर होगा सिंगल। अब इसका देखते हैं, इसका सिग्नल इसने स्प्लिट करना है एडजेसेंट कार्बन, n+1 रूल लगाना, इट विल अपीयर एज 4 पीक आएंगे। इसका सिग्नल इसने स्प्लिट करना बच्चे CH3 का, इसने CH2 वाले प्रोटॉन ने, इसके कितने स्पिन कॉम्बिनेशन पॉसिबल आपने पढ़ा, जब 2 प्रोटॉन्स हैं हाउ मेनी स्पिन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल बच्चे 3, सो इट्स सिग्नल अपीयर एज 3। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, पढ़ लेते, देखिए हमने दिया है एक में इधर से भी आप, इन दिस कंपाउंड द सिग्नल ड्यू टू 3 इक्विवेलेंट मिथाइल प्रोटॉन्स ऑन C4, ये बच्चे C4 will split into 1 to 1 ट्रिपलेट। फोर्थ कार्बन का सिग्नल स्प्लिट हो जाएगा 3 में विद 1 to 1 इंटेंसिटी रेशियो बाय 2, किसने स्प्लिट किया बाय 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन C4 प्रोटॉन का सिग्नल C3 प्रोटॉन ने स्प्लिट किया। सिमिलरली द सिग्नल ड्यू टू 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन C3 का सिग्नल कौन स्प्लिट करेगा, फोर्थ वाले, कितने में बच्चे 4, इंटेंसिटी रेशियो 1 3 3 क्वार्टेट by 3 equivalent protons on C4. However, the signal due to 3 equivalent methyl protons on C1 will not be split. C1 प्रोटॉन का सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा, वो पहले बता दिया। इसको देखें, ये मॉलिक्यूल हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, आपको पता ही है, जब बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, बिटवीन द प्रोटॉन सॉरी, जब बिटवीन द प्रोटॉन मोर देन 2 कार्बन एटम आ जाए सिग्नल स्प्लिट नहीं होता। लेकिन इतना तो पता बता दे मुझे, इसका सिग्नल आएंगे कितने, ये मिथाइल प्रोटॉन्स, ये बच्चे ये इक्विवेलेंट है, तो दीज 9 मिथाइल प्रोटॉन विल गिव सिंगल सिग्नल एंड दिस CH2 प्रोटॉन विल गिव वन सिंगल सिग्नल, स्प्लिटिंग होगा है ना। सो वी हैव 2 सिग्नल्स, द 9 प्रोटॉन ऑन 3 मिथाइल ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट एंड सो are the 2 protons on methylene group. Since the protons on the methyl group and the methylene group are separated by 3 carbon atom, these will show no splitting. ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चे, इसमें क्या है, ये जो मिथाइल प्रोटॉन है और ये मिथाइल ये इक्विवेलेंट है, देयर पीक विल